Hello friends, welcome to Kalyani IS Academy. Today we will study what is economics, branches of economics, what is the economy at last, socialist economy, capitalist economy and mixed economy. So let's start with economics. See, economics is the scientific study of human economic activity, and if the principles of economics are applied in a particular area, then the aggregate activities of that particular area are known as economy, the economy, right? So to know the economics and economy, we need to know about human activity. See, everybody does many activity every day. Some of them are economic activity and some of them are non-economic activity. The activity which can be measured using money, which means the activity which has monetary value, are called economic activity, and the activity which cannot be measured using money, right, or the activity which do not have monetary value are called non-economic activity. For an example, playing, singing, dancing, painting. If you do these activities for your self-interest or as a hobby, then these activities will be called non-economic activity. But if you are singer, if you are dancer, and if you perform on a stage and in return you charge, then definitely this activity will be called economic activity, right? Now there are mainly four types of economic activities. First is production. Right? What is the production? See, it is the process of converting raw material into finished goods or converting idea and knowledge into services so that the needs and wants can be satisfied, and this process is called production. For an example, you want to take tea. For that you require sugar, so using sugar cane the sugar can be produced, right? And in the same way, using cotton, cloths or shirts or pants can be produced, right? And in this situation, when cotton is converted into cloths, then the productivity increases, right? So converting the raw material into finished goods or idea or knowledge into services, which will be, that is called production, right? And this is a economic activity. Now the second activity is consumption. And what is consumption? See, consumption is the use of goods and services for the direct satisfaction of unlimited wants and needs. For an example, if you consume sugar or if use clothes to satisfy your needs or wants, then the consumption is an economic activity. So here we have studied production and consumption as economic activity. And third is exchange. What is exchange? Suppose that you have a particular goods and services and you require different goods and services. In this case, you can give whatever you have and you can take whatever you need, good or services. Means the receiving of something against something is called exchange. Earlier times the exchange was through barter system, right? As you know that in barter system, for example, that if you have tomato but you require rice, so in this case the tomato can be given and rice can be taken, and this will be called the exchange process. But nowadays there is a monetary exchange, means we can exchange the goods and services involving money, right? And the fourth economic activity is distribution. The division of income among the means of production is called distribution. For an example, the income is divided as a rent for the land and interest for capital and wages for labor or profit for entrepreneur. And I will define these things in later slide, right? So here production, consumption, exchange and distributions are the main economic activities.
Now we will understand what is non-economic activity. I have already told you that the activities which cannot be measured in money, or the activities which does not have the monetary value are called non-economic activity. For an example, social work, right? Distributing clothes and foods to the needy people, right? Religious work like worship, and emotional activities, love, hate, and physical activities. You take yoga in the morning time. So these are the non-economic activities. For an example, that the work for the family by the housewife, और गेमिंग हो जाएगा, राइट, जो कि आप खुद के लिए खेल खेलते हैं आपके मनोरंजन के लिए. तो ये जो है ये these will be non-economic activity, right? Now I would like to tell you the means of production. To produce a goods and services, we require land, capital, labor, and entrepreneur, right? Land also includes river, forest, hill, or mountain. Means we can say that natural resources. So lands also include river, forest, hill, and mountain, and for that the reward is rent. If in the production process, if we use river, forest, land, and hill, then reward would be rent. In the same thing, another means of production is capital, right? And the capital would be of 2 and 3 types. For an example, that physical capital, physical capital, and in physical capital like building and vehicle हो जाएगा. सेकेंड हो जाएगा फाइनेंशियल capital like cash and jewelry, and at last intellectual capital like idea or knowledge, right? So here the capital can be capital may be in the form of physical, building, vehicle, in the form of financial, cash in the form of intellectual, right, like idea and knowledge. And in the production process, if we use capital, then the reward would be interest, right? And for labor, the reward will be wages. An entrepreneur is the person who mobilizes land, capital, and labor to produce goods and services. And for the entrepreneur, the reward is either profit or loss. So these can be the means of production, can be asked in the examination as 3-marker question or 5-marker question. If the question is asked in 5-marker, then you can elaborate the land point, capital, labor, and entrepreneur. And if the question is asked in 3 markers, then you can simply note the means of production, land, capital, labor, entrepreneur, and the reward, right? Now you have understood about the human economic activities. So it will be very easy to understand economics and the economy. So now we will understand the economics. See, individual, society, and government uses limited resources to satisfy their unlimited wants and needs, and for that they do various types of economic and non-economic activity. Here the scientific study of economic study is called economics. In simple words, we can say that economics is the scientific study of human economic study. In general sense, economics is the subject under which the process of production, consumption, exchange, and distribution of goods and services are studied, right? So these were the definitions of economics. Now, as you know that Adam Smith is the father of classical economics, and in his book Wealth of Nation, he wrote Wealth of Nation. He called economics as the science of wealth, right? Now, Adam Smith is the father of economics, so therefore it is important to know about him. Adam Smith in his book he talked about natural law. Natural law
to produce. He talked about invisible hand, right? Invisible hands, right? And he told that every activity which is occurred in the market because of invisible hand. And what are the invisible hands? So you can say that self-interest. Because of self-interest, everybody is doing something or anything activity, right? Then competition, right? So here self-interest and because of competition, everybody is working, and self-interest and competition works as an invisible hands of the market. Then he told about laissez-faire, right? Laissez-faire means if laissez-faire, यदि हम मार्केट को खुला छोड़ दें तो जो डिमांड एंड सप्लाई है दैट विल इक्विलिब्रियम, वो अर्थव्यवस्था को इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में ले आएगा। और उसने जो एडम स्मिथ थे उन्होंने प्रोडक्शन जो था उसके बारे में भी बात की थी, राइट? तो अगर हमसे परीक्षा में पूछा जाता है कि जो वेल्थ ऑफ नेशन है उसमें कौन कौन से सिद्धांत या प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, सो वी कैन से दैट नेचुरल लॉ, इनविजिबल हैंड्स, लेजिस्फेयर, दीज थिंग्स वर टॉक्ड इन द वेल्थ ऑफ नेशन बुक, राइट? Now we will discuss the different opinions of the economics regarding the economy, right? As you know that Adam Smith told economics is the study of science of wealth, right? Economics is the science of wealth. He defined the economics having taken wealth at the center. But there is a little problem, which is Adam Smith told which is whatever which is scarce and useful, that will be called wealth, right? जो कुछ भी बहुत कम मात्रा में है और उपयोगी है उसको ही क्या कहेंगे? वेल्थ कहेंगे। और जैसे जो एयर है या वाटर है, ये क्या है? वेल्थ नहीं है, राइट? एयर, वाटर तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको एडम स्मिथ ने वेल्थ नहीं माना। देयरफॉर मैनी इकोनॉमिक्स criticized this definition. So to recognize economy as a subject, Alfred Marshall came and he defined the economy as the economics is the study of man's action in the ordinary business of life. It inquires how he gets its income and how he uses it. उनका ये कहना था कि जो मनुष्य का व्यवहार है उस व्यवहार का अध्ययन ही क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। और जो अल्फ्रेड मार्शल थे, ही डिफाइंड इकोनॉमी हैविंग टेकन ह्यूमन एक्टिविटी एट द सेंटर, राइट? और ही टॉक्ड अबाउट द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, राइट? तो जो कल्याणकारी अर्थव्यवस्था है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनकी परिभाषा महत्वपूर्ण मानी जाती है, राइट? तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मेंस एक्शन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. दिस वाज डिफाइंड बाय अल्फ्रेड मार्शल, राइट? आफ्टर दैट रोबिन्स केम एंड ही डिफाइंड द इकोनॉमिक्स as economy is the science which studies human behavior, right, and relationship between ends and square means which have alternate uses. Here ends means unlimited bonds. इन्होंने ये कहा कि मनुष्य की जो इच्छाएं होती हैं और जो जरूरतें होती हैं वो कैसी होती हैं? अनंत होती हैं, असीमित होती हैं, जबकि जो मीन्स होते हैं जैसे जो गुड्स और जो सर्विसेज होती हैं वो कैसी होती हैं? बहुत लिमिटेड होती हैं। इसीलिए इनमें क्या है? इनका अल्टरनेटिव यूज होना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल दैट नाउअडेज द डीजल एंड पेट्रोल कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय सोलर एनर्जी, right? And this study will be called economics according to Robinson. So now we have studied economics and various definitions of economics by different economists, right? Now I would like to tell you about the branches of economics, but
before that I would like to tell you why there were two branches of economics. See, before 1929 the Adam Smith's theory was prevalent in the economics, but after the Great Depression of 1929 there were many problems in the economy, and in this situation many economists gained different opinion, and one of them was John Maynard Keynes. He defined he talked about the government expenditure to revive the economy, and later in this process the macroeconomics came to existence. So if the question is asked who was the first person who coined the microeconomics and the macroeconomics, then you need to remember Ragnar Frisch. So Professor Ragnar Frisch was the first economist who coined the term microeconomics and macroeconomics in 1933. तो 1933 में रैगनर फ्रिश ने माइक्रोइकोनॉमिक्स एंड मैक्रोइकोनॉमिक्स को कॉइन किया. राइट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज माइक्रोइकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज मैक्रोइकोनॉमिक्स. सी, microeconomics is the study of economic problem and economic activity at the individual level, right? At the individual level, right? जब हम व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं के बारे में और आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं तो हम उनको बहुत गहराई में जाकर, बहुत अच्छे से जाकर उनके बारे में अध्ययन कर सकते हैं और उन समस्याओं को समझ सकते हैं, उनके बारे में समाधान ढूंढ सकते हैं. वहीं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको इकोनॉमी एज अ होल, मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक गतिविधियां हैं या आर्थिक जो समस्याएं हैं उनको मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है. फॉर एन एग्जाम्पल दैट, राइट, सी हियर माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअल या हाउस होल्ड या एक फर्म के लेवल पर पढ़ते हैं. हम यहाँ पर समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति की आय कैसे बढ़ती है, राइट, या फिर उस जो है वो फर्म है उसकी वस्तुओं की जो है कीमत में कैसी वृद्धि हो रही है या कैसे कमी हो रही है. वहीं जैसे अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे तो हियर वी विल स्टडी हाउ द इनकम ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीजेस, बट इफ वी विल स्टडी this thing same, then the income of everybody will be called the GDP और per capita income या फिर GDP. तो जब हम एक व्यक्ति की इनकम के बारे में पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर उसकी कीमत के बारे में, उसकी इनकम के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे उसकी इनकम में वृद्धि हो रही है या उसके पीछे क्या कारण है. और जब हम पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे तो वही क्या कहलाएगी, GDP कहलाएगी या GNP कहलाएगी. वैसे ही इफ अगर हम यहाँ पर किसी एक कोई भी क्या है कंपनी है, उस कंपनी की वस्तुओं की कीमत के बारे में पढ़ रहे हैं कि यदि उसकी कीमत बढ़ती है या घटती है तो क्या प्रभाव होता है, तो दैट विल बी स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. बट अगर हम सभी वस्तुओं की कीमत में वृद्धि या कमी को पढ़ें तो वही क्या कहलाएगा, महंगाई कहलाएगा. राइट, तो यहाँ पर एक व्यक्ति की इनकम, यहाँ पर सभी व्यक्तियों की इनकम GDP, यहाँ पर वस्तु की कीमत, तो यहाँ पर वही क्या हो जाएगा, महंगाई हो जाएगा. मतलब हम यहाँ पर जो एक व्यक्ति है या एक हाउस होल्ड है या एक प्रोडक्शन फर्म है उसकी इनकम के बारे में, उसकी समस्याओं के बारे में, उसकी कीमत के बारे में, कीमत निर्धारण के बारे में जो कुछ भी है वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं. और चूंकि इसमें हम सबसे पहले किसी एक फर्म के बारे में पढ़ते हैं, फिर किसी दूसरे फर्म के बारे में पढ़ेंगे और इस तरीके से हम पूरे के पूरे बाजार व्यवस्था को समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं. इसीलिए जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इट इज कॉल्ड बर्ड्स आई व्यू. राइट, जैसे कीड़ा अपने आसपास की सभी जगह को बहुत अच्छे से समझ लेता है, वैसे ही हम यहाँ पर एवरी इंडिविजुअल, हाउस होल्ड और प्रोडक्शन फर्म है उनकी समस्याओं को, उनकी गतिविधियों को समझकर उनका समाधान निकाल सकते हैं. इसीलिए ये क्या कहलाता है, वर्म्स आई व्यू कहलाता है. जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, सभी व्यक्तियों की समस्या, मतलब पूरी अर्थव्यवस्था की जो है समस्याएं हैं या गतिविधियां हैं उनको समझते हैं, अर्थात मोटे तौर पर समझते हैं. देयरफॉर इट इज कॉल्ड वर्ड्स आई व्यू.
राइट। इसमें चूंकि हम एक कंपनी के बारे में चर्चा करते हैं और फिर हम एक राय विकसित करते हैं, इसीलिए ये जो है, हाँ, तो हम यहाँ पर एक किसी भी जो फर्म होती है उस फर्म की जितनी भी जो समस्याएं होती हैं उनके बारे में समझते हैं, राइट। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, बॉटम अप अप्रोच बोला जाता है, राइट। नीचे से लेकर ऊपर को ऊपर की ओर बॉटम अप अप्रोच हो जाएगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, टॉप डाउन अप्रोच के बारे में भी जानते हैं। तो ये यहाँ पर I try to explain the difference between microeconomics and macroeconomics. अब इनकी और विशेषताएं क्या होती हैं, that will be studied. Second thing is that the macroeconomics deals with the economic issues at small economic units, right? Like a person, a consumer, and a firm. While the macroeconomics deals with the macro scale economic issues of the whole economy, right? Like national income, monetary policy, employment, and inflation. The third and most important fact is that in microeconomics, the main problem and the main thing is the determination of price, right? Microeconomics is known for the determination of price, as it deals with the determination of price in the market. While as far as if we talk about the macroeconomics, then it is called the income and employment theory, because it is concerned with the determination of aggregate output and general price level. I will make you understand about this. See, देखिए, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो कीमत सिद्धांत के बारे में बात करता है, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो आय एवं रोजगार सिद्धांत के बारे में बात करता है। दोनों में क्या अंतर होता है? इफ वी टॉक अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, सी, देखिए कीमत का निर्धारण कैसे होता है। जैसे ये अर्थव्यवस्था हो जाएगी, हियर वी विल टेक क्वांटिटी। अगर हम यहाँ पर किसी वस्तु की क्वांटिटी लेते हैं और यहाँ पर हम उस वस्तु का प्राइस ले लें, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज है, तो आप लोगों को पता है कि जब किसी भी वस्तु की, जैसे ये एक क्या हो जाएगा, डिमांड हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा, राइट। यदि हम सप्लाई को कांस्टेंट माने तो जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, प्राइस होगा, और जितनी कम डिमांड होगी उसका प्राइस भी क्या होगा, उतना ही कम होगा, और जितनी अधिक डिमांड होगी उसका प्राइस भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। वैसे ही सप्लाई में भी अगर आप देखें तो अगर किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई ज़्यादा है तो उसकी कीमत क्या होगी, कम होगी, और यदि किसी भी वस्तु या सर्विसेज की सप्लाई क्या है, बहुत ही कम है, नॉमिनल है, तो उसकी जो है कीमत वो बढ़ जाएगी। अब ऐसा बिंदु जहाँ पर इनकी डिमांड और सप्लाई में बैलेंस स्थापित हो जाता है, वहीं पर वस्तु का क्या निर्धारण हो जाता है, प्राइस निर्धारित हो जाता है। जैसे अगर हमने कह दिया कि ये डिमांड का ग्राफ है और यहाँ पर ये जो है सप्लाई साइड है, तो जहाँ पर ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे वहीं पर प्राइस निर्धारित हो जाएगा। इन द सेम वे, जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पर कुछ समय बाद ये डिमांड कुछ और थी और डिमांड की मात्रा में परिवर्तन आया, तो यहाँ पर फिर इन दोनों में जैसे ही बैलेंस होगा वहाँ पर फिर क्या होगा, उस वस्तु का जो है कीमत का निर्धारण हो जाएगा। सो द माइक्रो इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, राइट, वेयर एज द माइक्रो इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड विद द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, आय एवं रोजगार, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट। सी, देखिए जॉन मेनार्ड की जो एम्प्लॉयमेंट स्कीम थी उनके अनुसार ये था कि जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर,
राइट। तो जॉन मेनार्ड कीन्स का ये कहना था कि जो बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस व्हेन एग्रीगेट डिमांड डिक्रीजेस और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस। अगर जैसे मैंने कह दिया कि यहाँ पर कोई क्राइसिस है, ठीक है, जैसे अवसाद की स्थिति है या फिर जो अर्थव्यवस्था है वो रिसेशन चल रहा है, तो अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने के लिए, अर्थव्यवस्था रिवाइव कब होगी, जब हमको क्या करना पड़ेगा, इनकम आय बढ़ानी होगी। और इस सिचुएशन में उन्होंने कहा था कि जो डिमांड है, डिमांड को तो हम किसी भी तरीके से बढ़ा नहीं सकते हैं, राइट। जैसे अगर आप देखें तो कोरोना की वजह से कई लोगों की जॉब चली गई हैं, दे डोंट हैव सेविंग्स, दे डोंट हैव मनी टू परचेज द गुड्स, देयरफॉर डिमांड इज वेरी लो। बट एट दिस सिचुएशन somehow if B increases the expenditure, like जैसे मनरेगा, यदि हम मनरेगा के माध्यम से लोगों की क्या बढ़ा दें, इन जो है एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दें, तो अगर हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं तो उससे क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। सीधी सी बात है, इफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस होता है तो उससे मार्केट में क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा तो उससे क्या होगी, पुनः जो है वो डिमांड भी क्या होगी, बढ़ने लगेगी, डिमांड बढ़ने लगेगी तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन भी बढ़ने लगेगा। और इस तरीके से एक साइकिल क्रिएट हो जाएगी कि जैसे ही हम एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, डिमांड भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और ये एक साइकिल जो है वो प्रारंभ हो जाएगी। और इस तरीके से जो है इनकम भी बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पर जो है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो थ्योरी है, it is related to macroeconomics, while determination of price, this is related to microeconomics, right. Now we will discuss one particular point also. See, in microeconomics it stipulates that economy should be operated according to market forces, because as you know that Adam Smith is the father of microeconomics, and here the theories and principles of Adam Smith prevalence in microeconomics, father of microeconomics, right. And according to him जो मार्केट है, वो जो इकोनॉमी है, हमें उसे मार्केट पर ही छोड़ देना चाहिए। जबकि जो जॉन मेनार्ड कीन्स है, उनका कहना है कि हमें मार्केट पर लीगल कंट्रोल होना चाहिए, राइट, ताकि सामूहिक हित हो सके। तो सामूहिक हित पर हमें जो है मार्केट पर लीगल कंट्रोल होना चाहिए। तो हियर द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ, while the father of macroeconomics is John Maynard Keynes, right. Now we will study the economy, right. Now we have studied economics, understand, economics, right. And as I told you that economics is the scientific study of human economic study. It is theoretical aspect, right. And when the principles of economics applied in a particular area like India, जब अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को ही हम किसी क्षेत्र विशेष में लागू करते हैं तो वहाँ की जो गतिविधियाँ होंगी उन्हें ही हम उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कहेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, if we apply the theories and principles of economics in India, then the aggregate activity of Indian market is called economy of India. And in other words, we can say that the economy is a system created by a nation with the aim of improving socio-economic condition of its citizen while making proper planning of the available resources. Keeping money at the center is called economy, right. And you should also know the word economy. The word economy is imperfect because it does not have a specific meaning, but if we add a country name, then it will give a meaningful,
then it will give meaning, right? जैसे अगर हम यहाँ पर जो इकोनॉमी है, जब तक अगर हम उसके सामने इंडियन या कोई भी देश का नाम नहीं लगाएंगे तो वो अपूर्ण अर्थ देगा। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी, तो अब ये सीधा हो जाएगा कि जो इकोनॉमिक्स के सिद्धांत हैं उनको लागू किया गया इंडिया में, तो वहाँ की जो गतिविधियाँ हैं वो कहलाई इंडियन इकोनॉमी, राइट? तो इंडियन इकोनॉमी, एमपी इकोनॉमी एंड यूज ऑफ US economy, right? So in simple words we can say that economics is the scientific study of human economic study. So economics is the theoretical aspect, while the economy is the practical aspect, right? Now I would like to tell you that, see, the principles and theories of economics are same, right? Whether the principle of economics is applied in America or in India, the result should be same, but this does not happen. Why? So we will understand. See, the principles of economy are same, but the conditions of a particular area are different, right? Every country has different political, administrative, cultural and geographical फैक्टर। तो हर एक देश की भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक स्थिति अलग अलग होती है, और इन्हीं फैक्टर्स के कारण ही जब अर्थव्यवस्था के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, राइट, या फिर जो थ्योरीज होती हैं उनको जब अप्लाई किया जाता है तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या होते हैं, उससे प्रभावित होते हैं, राइट? एंड देयरफॉर द रिजल्ट वुड बी डिफरेंट. So in other words we can say that every country has a different situation, every country has different administrative, cultural, political factors, and because of these factors the same the principles of economy give different types of result in different situation and in different countries. Therefore the two countries cannot have the same economy, right? Therefore अगर अब हमको पता चल चुका है कि अगर अलग सभी देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो अलग अलग होती हैं, सो वी नीड टू स्टडी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, एंड वी कैन कैटेगराइज द इकोनॉमीज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग लाइक डेवलपमेंट and degree of control. So a classification of economy based on the degree of control, right? नियंत्रण की स्थिति के आधार पर there are three types of economies: capital or liberal economy, socialist and centrally planned economy, and mixed economy, right? Second, on the basis of development, there are three types of economies. First, developed economies, second, developing economy, and third, underdeveloped economy, right? On the basis of relations with the rest of the world, if relation with the rest of world is available, then it will be called open economy, and if there is no relation with the rest of world, then it will be called closed economy, right? On the basis of planning, if planning is available, then this will be called planned economy, and second, unplanned economy, right? And on the basis of different sector, if primary sector or agriculture sector is prevalent in the economy, then this will be called agricultural economy. अगर औद्योगिक क्षेत्र प्रभावी है और उसका जीडीपी में योगदान अधिक है तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी होगी, और अगर किसी देश की जीडीपी में जो हिस्सेदारी है सर्विस क्षेत्र या सेवा क्षेत्र की अधिक है तो दैट विल बी कॉल्ड सर्विस इकोनॉमी, राइट? सो ये हमने यहां पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण पढ़ लिया है. So now we will study different types of economies based on degree of control, right? So based on the degree of control, there are three types of economy, right? First, capitalist economy, and this is also called liberal economy, right? Second, socialist economy, this is also called planned, centrally planned economy, and third would be mixed economy. So we will study one by one. As you know,
I have already told you that economics is the theoretical aspect, and when the principles of economics are applied in a particular area, then the practical use is called economy, and economy is based on the resources. Yeah, resources plays most important role in the economy. Therefore we need to know about the resources. The resources are of three types: natural, वे प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, नेचुरल; फिजिकल रिसोर्सेज लाइक व्हीकल हो जाएगा, प्लांट हो जाएंगे, एंड थर्ड ह्यूमन, राइट। अब अर्थव्यवस्था में हम इन संसाधनों का, वेदर इट इज नेचुरल, फिजिकल और ह्यूमन, वी either we exploit the natural resources or we consume the natural resources or we distribute the natural resources. And if there is no control on the distribution or consumption or exploitation, then the natural resources or physical resources will be exploited very soon. Therefore, if there is a control, if the control is of government, and you know that the government is formed by the society, means control of society, or if the control of society on the natural resources, then this will be called socialist economy, right? And in the same way, if the distribution, whether distribution or exploitation of natural resources, if the control is of private individuals, means जो हित होता है उनका वो पूंजी होता है, अगर कंट्रोल निजी हाथों में है तो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था होगी वो कैसी होगी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी। सीधा सा मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था निर्भर करती है किस पर? संसाधनों पर। यदि संसाधनों पर सरकार द्वारा, और सरकार किससे बनती? समाज से, तो यदि प्राकृतिक संसाधनों पर समाज द्वारा अभिव्यक्त सरकार का क्या होता है? नियंत्रण होता है, तो वहां की अर्थव्यवस्था कैसी होगी? सोशलिस्ट इकोनॉमी होगी। और यदि जो प्राकृतिक संसाधन है, राइट, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या जो फिजिकल रिसोर्स हैं, उन पर पूंजी को हित में रखकर अगर निजी व्यक्तियों का क्या है? नियंत्रण है, तो वहां पर जो अर्थव्यवस्था होगी वो कैसी होगी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी, राइट। सो नाउ वी विल स्टडी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. I would like to tell you about the origin of the capitalist economy so that you could understand the importance of it, right? See, during industrial revolution, right? During industrial revolution, एक तरफ जहाँ जो उद्योग थे, इंडस्ट्रीज थी, उनकी स्थापना होती जा रही थी, एंड सेकेंड थिंग इज दैट, तो औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था उसकी वजह से जहाँ पर उद्योगों की स्थापना हो रही थी वहीं पर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे दे वर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, और इसकी वजह से चूंकि स्टेट का नियंत्रण था और स्टेट वस्तुओं का उत्पादन या प्रोडक्शन में उतनी रुचि नहीं ले रहा था, देयरफॉर जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो हो नहीं रही थी। इसी समय पर एडम स्मिथ ने अपनी एक किताब लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन, और उन्होंने कहा था कि जो भी है हमें अर्थव्यवस्था को बाजार की अंतर या बाजार पर ही छोड़ देना चाहिए। जो बाजार की अदृश्य शक्तियां, इनविजिबल हैंड्स ऑफ द मार्केट, और जो डिमांड एवं सप्लाई है वो खुद से ही अर्थव्यवस्था में इक्विलिब्रियम ले आएगी और जो ग्रोथ है वो क्या होगा? बढ़ेगा। और इन्हीं विचारों को जैसे ही अमेरिका आज़ाद हुआ था उसने एडम स्मिथ के विचारों को अपनी नीतियों में स्वीकार कर लिया, और 1800 के दशक तक कई देशों ने भी जो कैपिटलिस्ट, जो एडम स्मिथ के विचार थे उनको अपनी आर्थिक नीतियों में शामिल कर लिया, और इस तरीके से अमेरिका तथा कई यूरोपियन कंट्रीज में जो अर्थव्यवस्था का स्वरूप सामने आया, दैट वाज known as the capitalist economy. So in simple words we can say that the capitalist economy occurred during industrial revolution when America and European countries included Adam Smith's policies in their economic policies. Then the capitalist economy came to existence, right? Now we will define we can define the capital economy in 4 points, right? And if you are going to write
अगर आपको परीक्षा में बहुत अच्छा उत्तर लिखना है तो ये 4 चीजें मेंशन ही होनी चाहिए। द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टू डिफाइन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज दैट the capitalist economy is such an economic system where the means of production, land layer I told you earlier, so the means of production are controlled and owned by the private individuals, or we can say that private sector. Second thing is that economic activities are conducted for the purpose of personal interest and profit motive, right? Third, the role of government in production and distribution of goods and services is very minimal. So the role of government is very minimal. And fourth thing is that market forces, mean demand and supply, determine the price of goods and services. So 4 things in short: means of production controlled and owned by private individuals, right? Profit motive, importance of profit motive or personal interest, right? Role of government is very minimal. And fourth, price is determined by demand and supply, right? The capitalist economy is also known as market economy, right? Free economy, market economy, free economy, free market economy, or private enterprises system. So that was the definition of capital economy. Now we will see the features of capitalist economy, right? The most important feature of the capitalist economy is laissez-faire, means government should not intervene in the market in the production process. So laissez-faire is the most important feature of the capitalist economy. Second, state government's intervention is absent or very minimal. The third thing is that right to private property, because in socialist economy the every means of production, whether it is land or assets, is controlled and owned by state, right? But in capitalist economy the means of production are controlled and owned by private individuals, means there is a right to private property. Fourth, the objective of the capitalist economy is maximizing profit, right? Fourth, there is a financial freedom, means there is no control of government, so you are free to produce, what to produce, how to produce, and how much to produce, you can decide. So there is a financial freedom in capitalist economy, right? And the consumers have freedom of choice. How? Let's see. The means of production are owned by private individual, and private individual has profit motive, राइट? तो जो उत्पत्ति के साधन होते हैं उन पर नियंत्रण होता है निजी व्यक्तियों का, और उनका उद्देश्य क्या होता है? अधिक से अधिक लाभ कमाना। देयरफॉर दे प्रोड्यूस मोर, जो भी होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो उससे डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा? कंजप्शन ज़्यादा होगा, और कंजप्शन ज़्यादा होगा तो फिर जो है ग्रोथ, एक तो क्या बढ़ेगी? ग्रोथ बढ़ेगी, और उसके साथ ही हर एक कंपनी जो है वो अपना माल को क्या करेगी? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए या बेचने के लिए नई नई जो वैरायटी के हैं वो नई वैरायटी की क्या कराएंगे? वस्तुएं बनाएंगे। इसीलिए जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास में कई वैरायटी की जब वस्तुएं मार्केट में अवेलेबल होंगी तो दे वुड हैव फ्रीडम ऑफ चॉइस, वो अपनी मनपसंद की जो है वस्तुएं मार्केट से खरीद सकते हैं। इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आई ऑलरेडी टोल्ड यू कंपटीशन इज वेरी हाई। व्हाई? क्योंकि जो जितने भी प्रोड्यूसर होते हैं वो अपना प्रॉफिट कमाते हैं, और प्रॉफिट कमाने के लिए वो
जो है एक तरीके से जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको खुश करने के लिए कई वैरायटी की जो है वो वस्तुएं बनाते हैं, और जब कई वस्तुएं होती हैं मार्केट में अवेलेबल तो जाहिर सी बात है उनके बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा। और अगर जब कई वस्तुओं के बीच में कंपटीशन होगा तो उससे R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी क्या होगा, युक्त होगा। भाई अगर किसी कंपनी को अपना अच्छा से अच्छा माल मार्केट में उतारना है तो वो उस पर रिसर्च भी करेगा, राइट, स्किल्स भी इम्प्रूव्ड होंगे, राइट। एंड एट, डिमांड एंड सप्लाई आर इंपॉर्टेंट, राइट। जो पूरी की पूरी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो डिमांड एंड सप्लाई पर टिकी हुई है, राइट। वैरायटी एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इजीली अवेलेबल, right? So these were the features of capitalist economy. Now we will study the merits and demerits of capital economy. First thing is that greater satisfaction of consumers. I told you that there are many varieties of products in the capitalist economy. Therefore the consumer can purchase whatever he requires and whatever he wants, and he can get greater satisfaction. So the first thing is that greater satisfaction of consumers. Second thing is that there is a high competition in the capitalist economy, therefore it will leads to technological development, and high competition also leads to improvement in research and development, and high competition also leads to production capacity and efficiency enhancement, right? And the motive is profit motive, therefore optimum use of the resources, right? कि जो resources हैं उनका कम प्रयोग करके हम अधिक से अधिक क्या कमाएं, लाभ कमाएं, राइट। तो दिस वुड बी हाँ, और सबसे क्या हो जाएगा लास्ट में, इकोनॉमिक फ्रीडम। तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती हैं उनके इतने क्या होते हैं, मेरिट्स होते हैं, राइट। नाउ वी विल स्टडी द demerits of the capitalist economy, and you need to understand here the demerits of the capitalist economy, very important, because the situation to occur the socialist economy depends on the demerits of the capitalist economy. See, here competition is very high, and when competition is very high तो जो कंपनियां होती हैं वो अपनी विरोधी कंपनियों को क्या कर लेती हैं, या तो एक्वायर कर लेती हैं या उनको मार्केट से बाहर कर देती हैं, और धीरे धीरे जो बड़े बड़े इंटरप्राइज होते हैं वो मोनोपोली का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। एंड एज यू नो दैट इफ देयर इज अ मोनोपोली इन द मार्केट देन डेफिनेटली कंज्यूमर विल बी इन अ लॉस सिचुएशन, क्योंकि कंज्यूमर के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। तो बिकॉज ऑफ कैपिटलिस्ट क्रिएशन ऑफ मोनोपोलीज, और जब मोनोपोलीज का क्रिएशन हो जाएगा तो सीधी सी बात है कोई भी एक व्यक्ति है, एक कंपनी अधिक से अधिक इनकम करेगी और दूसरे जो व्यक्ति हैं उनके पास में इनकम के रिसोर्सेज नहीं होगी। तो बिकॉज ऑफ हाई कंपटीशन, क्रिएशन ऑफ मोनोपोलिसीज, एंड बिकॉज ऑफ दैट inequalities of income and wealth. This is the most important demerits of the capitalist economy. You need to understand the capitalist यहाँ पर जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है उसमें प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है, और इसके लिए क्या होगा, या तो जो वस्तुएं हैं उनको हम क्या करेंगे, उनका जो है प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा, या फिर उनकी जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसको घटानी पड़ेगी। अब अगर दे विल इंक्रीज द प्राइस लेवल देन डेफिनेटली जो प्रोडक्ट है वो मार्केट से बाहर हो जाएगी, अब कंज्यूमर उसको खरीदेंगे नहीं। परंतु यदि वो क्या करते हैं कि जो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको कम कर दें तो डेफिनेटली दे विल इंक्रीज द प्रॉफिट। एंड इन दिस सिचुएशन जब वो कॉस्ट को क्या करेंगे, कम करेंगे, तो सीधी सी बात है भाई उनके पास में जो भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक बार अगर स्टेब्लिश हो गया तो उसमें वो कोई चेंजेस नहीं कर सकेंगे, वो चेंजेस करेंगे किसमें, लेबर में। तो जो जितने भी लेबरर्स होते हैं उनकी जो भी सैलरी होती है उस सैलरी को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो इससे उनका जो है वो प्रॉफिट बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ जो पूंजीपति व्यक्ति हैं वो और अधिक क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ करेंगे। मतलब ये है कि एक तरफ उनके पास में जो है, जो भी एक तरीके से जो है जिनके पास में भी मींस ऑफ प्रोडक्शन है,
एक तरफ उनके पास में जो है धन संपत्ति बढ़ती ही जाएगी, वहीं दूसरी तरफ जो सेकेंड सोसाइटी, सेकेंड क्लास है, जो मजदूर वर्ग है, लेबरर है, उनके पास में जीवन यापन के संसाधन भी नहीं होंगे। और यही क्या करेगा, जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होगा, इसी की वजह से सोसाइटी में इनइक्वालिटीज होंगी और उसी की वजह से फिर क्या होगा, क्लास कॉन्फ्लिक्ट होगा। और क्लास कॉन्फ्लिक्ट होगा तो इससे जो है क्लास कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसकी वजह से ही फिर आप अगर आगे हम समझेंगे तो वहां पर दैट विल लीड्स टू द सोशलिस्ट इकोनॉमी एज अ अल्टरनेटिव ऑप्शन, राइट। द फिफ्थ डेमेरिट्स आल्सो डिक्लाइन इन मोरल वैल्यूज, राइट, और मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज। ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका मिसयूज भी किया जाता है, राइट। चूँकि everybody wants to make a huge profit, दैट्स वाई वो इकोनॉमिक क्राइसिस की चिंता नहीं करती है। और कई बार मिसमैनेजमेंट की वजह से जो ह्यूज डिमांड एंड सप्लाई में जब ह्यूज गैप होता है तो उसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो कि वर्तमान समय की समस्या है, नो कंसर्न फॉर द इकोलॉजी, बिकॉज जो जितने भी कैपिटलिस्ट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहते हैं, दे डोंट केयर अबाउट द रिसोर्सेज, दे डोंट केयर अबाउट द ecology, they want huge profit. So these were the demerits of the capitalist economy. Now we will study the socialist economy, right? So as I told you that in capitalist economy concentration of wealth, right, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हुआ, मतलब एक तरफ कुछ लोगों के पास में अथाह संपत्ति थी और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों के पास में संपत्ति के साधन या जीवन निर्वाह के लिए भी संपत्ति नहीं थी। इन दिस सिचुएशन देयर वर टू क्लासेस इन द सोसाइटी एंड कार्ल मार्क्स ने उनको कहा था, कार्ल मार्क्स ने जो दो क्लास थी उनमें से एक क्लास को क्या कहा, हैव्स, एंड सेकंड क्या हो जाएगा, हैव नॉट्स। तो जो हैव्स क्लास थी, इट हैज, इनके पास में संपत्तियां थी, और जो हैव नोट्स थे इनके पास में संपत्तियां थी ही नहीं, राइट। और इनका जो जीवन यापन था, जो लिविंग स्टैंडर्ड था, वो गिरता ही जा रहा था। और इसकी वजह से मैंने बताया था कि समाज में जो था क्लास कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला गया था। और इस सिचुएशन में कार्ल मार्क्स आए एंड उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचार किए, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि दुनिया के जितने भी मजदूर हैं, राइट, जो हैव नॉट्स है या जिनको हम कहते हैं सर्वहारा वर्ग, उनसे कहा कि दुनिया के सभी मजदूरों एक हो जाओ एंड थ्रो आउट द कैपिटलिज्म, राइट। जो कैपिटलिज्म है उसको उखाड़ फेंको एंड कंट्रोल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और जो जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उन पर अपना कब्जा कर लो। और उन्होंने कहा था कि जो कैपिटलिज्म है वो सोशलिज्म की रास्ते से ही कम्युनिज्म की ओर जाएगा, राइट। तो उन्होंने यही कहा था कि कैपिटलिस्ट को उखाड़ फेंकेंगे, फिर समाजवाद आएगा और उसके बाद में कम्युनिज्म आएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो कार्ल मार्क्स के जो क्रांतिकारी विचार थे, बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजी ऑफ कार्ल मार्क्स, द बोल्शेविक revolution took place in Russia in 1917 and as a result of which the socialist economy occurred in Russia and later जो जितने भी रसिया के सहयोगी देश थे उनमें सोशलिस्ट इकोनॉमी की क्या हुई, स्थापना हुई। Now the socialist economy can be defined as the socialist economy is such an economic system where means of production are owned and controlled by government or society. So here means of production are controlled and owned by society. Second, the economic activities conducted for the purpose of collective interest or social welfare, right? Social welfare हो जाएगा। And third, in this the role of government to produce goods and services and to distribute is maximum. Role of government is maximum. And fourth thing is that the price of goods and services also determined by the states. So in this way we can define the socialist economy or state economy or centrally planned economy, right? It is also called socialist economy or centrally planned economy, right? Examples are Russia, China, North Korea, etc. And earlier
वियतनाम, बुल्गारिया और यूगोस्लाविया आल्सो अप्लाइड सोशलिस्ट इकोनॉमी। बट एट प्रेजेंट जो जितने भी देश हैं उनमें से जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है वो बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, राइट। चाइना जो है वो मिश्रित इकोनॉमी का अर्थ पड़ रहा है। हम कह सकते हैं कि चाइना में और नॉर्थ कोरिया में अभी भी जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी है, राइट। नाउ वी विल सी द फीचर्स, sorry, now we will see the types of socialist economy. So there are two types of socialist economy. First, socialist economy, and second, communist economy. Communist economy. So what is the difference between socialist economy? I told you earlier कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो है कैपिटलिज्म को अगर हम उखाड़ फेंकेंगे तो जो कम्युनिज्म है वो सोशलिज्म के थ्रू ही आएगा, राइट। तो ये पूरा का पूरा क्या था वो समझते हैं। समझिए, देखिए, सोशलिस्ट जो इकोनॉमी थी, इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी गुड्स एंड सर्विसेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली टू ऑल सिटीजन। जो जितने भी नागरिक होते हैं उनमें सेवाओं एवं वस्तुओं का वितरण समान रूप से किया जाता है। आल्सो देयर वाज द स्टेट कंसेप्ट। यहाँ पर स्टेट की संकल्पना भी थी कि स्टेट जो है वो सभी वस्तुओं को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। बट इन कम्युनिस्ट जो इकोनॉमी थी उसमें वीदरिंग ऑफ स्टेट का कंसेप्ट था, अर्थात इन कम्युनिस्ट इकोनॉमी एवरी पर्सन इज गिवन वर्क अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी। जिस व्यक्ति है उससे जो कार्य लिया जाएगा उसकी योग्यता अनुसार, बट द एवरी पर्सन इज प्रोवाइडेड द रिवॉर्ड एज हिज रिक्वायरमेंट। फॉर एन एग्जाम्पल दैट यदि एक व्यक्ति है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और ही कैन वर्क 5 आवर, बट उसकी फैमिली है, ही रिक्वायर्स 80,000 रुपीज़, बट और सेकंड ये फर्स्ट केस हो जाएगा। और सेकंड केस में क्या है कि जैसे मैंने मान लिया कि कोई एक यज्ञ व्यक्ति है जो 10 घंटे कार्य कर सकता है लेकिन अनमैरिड है और उसको 20,000 की ज़रूरत है, तो जो है कम्युनिस्ट इकोनॉमी में हम उनकी क्षमता के अनुसार उनसे क्या लेंगे, काम लेंगे। यहाँ पर जो ए व्यक्ति है वो 5 घंटे कार्य कर सकता है, बी 10 घंटे कार्य कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जो ये इसकी कार्य क्षमता भले ही कम है लेकिन इसकी ज़रूरतें ज़्यादा हैं तो इतना जो है इसको दिया जाएगा, और इसकी भले ही कार्य करने की क्षमता अधिक है लेकिन रिक्वायरमेंट कम है तो इसको इतना कम दिया जाएगा। और यहाँ पर जो है स्टेट का कंसेप्ट नहीं था। वीदरिंग ऑफ जो स्टेट्स है वो कम्युनिस्ट इकोनॉमी की मुख्य क्या है, विशेषता है। सो एग्जाम्पल ऑफ द सोशलिस्ट इकोनॉमी इज इकोनॉमी ऑफ फॉर्मर यूएसएसआर। और जो कम्युनिस्ट इकोनॉमी है वो चाइना की थी, और तो यहाँ पर हो जाएगा चाइना। ये 1985 से पहले जो चाइना की इकोनॉमी थी वो सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, राइट। नाउ वी विल स्टडी फीचर्स ऑफ स्टेट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी, राइट। फर्स्ट इज दैट ऑब्जेक्ट ऑफ सोशल बेनिफिट और पब्लिक वेलफेयर। मैंने पहले ही बताया था कि कैपिटलिज्म के कारण ही क्लास कॉन्फ्लिक्ट था और वहाँ पर निजी हित था, जबकि जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है उसका द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज सोशल बेनिफिट और पब्लिक वेलफेयर। सेकेंड थिंग इज दैट देयर इज कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट। थर्ड, फ्रीडम ऑफ चॉइस of the consumer is very minimum because state decides what to produce and how to produce. Fourth, there is economic equality, क्योंकि यहाँ पर स्टेट ही पूरा का पूरा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, therefore there is economic equality in the society, right। और जब अगर इकोनॉमिक इक्वालिटी होगी तो क्लास जो स्ट्रगल है वो होगा ही नहीं, राइट। और यहाँ पर जो स्टेट का रोल है वो क्या होगा, अधिक होगा। अब हम यहाँ पर सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे। सी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। एज आई टोल्ड यू दैट जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कंट्रोल किए जाते हैं किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा। इसीलिए यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन इनकम और वेल्थ का समान ही होता है। जो है क्लास स्ट्रगल समाप्त हो जाता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड ऑफ इकोनॉमिक्स अप्स एंड डाउन्स, राइट। और फिफ्थ, प्लान्ड इकोनॉमीज। डिमेरिट्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, डिक्रीज इन कंज्यूमर फ्रीडम बिकॉज
here state decides what to produce, how to produce, so consumers won't have many varieties of product, therefore decrease in consumers freedom. Second, decrease in production, because there is no personal freedom, or we can see that there is no profit motive, therefore government official don't try to give our best and give, therefore जो प्रोडक्शन है वो हमेशा क्या रहता है, लो रहता है. लैक ऑफ इकोनॉमिक मोटिवेशन. फोर्थ, रेस्ट्रिक्टेड पर्सनल फ्रीडम, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, क्या उत्पादन करना है, क्या खरीदना है, वो यहाँ पर बहुत ही कम हो जाती है, राइट. और डिक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट होते हैं और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो अपने अनुसार कार्य करते हैं, देयरफॉर डिक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ. और इसका एक कारण आप ये भी मान सकते हैं कि जो लैक ऑफ इकोनॉमिक मोटिवेशन होता है, चूंकि जो सबसे बड़ी हम यहाँ पर यही कह सकते हैं, यहाँ पर इकोनॉमिक मोटिवेशन कम होता है, इसलिए प्रोडक्शन भी कम होता है, और इसके साथ ही जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, राइट. तो यहाँ पर हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में पढ़ चुके हैं. सो नाउ वी विल स्टडी मिक्स्ड इकोनॉमी. At first, I would like to tell you that how mixed economy occurred. I already told you that the Great Depression of 1929. After the Great Depression of 1929, capitalist economies of USA and many European countries collapsed, and after that unemployment and poverty increased day by day. In this situation, John Maynard Keynes provided his thoughts in his books The General Theory of Employment, Interest and Money in 1936. और इनके विचारों से जिस अर्थव्यवस्था का उदय हुआ, दैट वाज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमीज, राइट. और यहाँ पर प्रोफेसर हैंसन ने कहा कि मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ ड्यूअल इकोनॉमी, मीन्स हियर द मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी आर बोथ फाउंड, right. Therefore Hansen said mixed economy is a dual economy. Now we will define the mixed economy. See, a mixed economy is an economic system in which both the private sector and the government sector coexist, right. Second, in this the responsibility of economic activities of fundamental and important like defense हो जाएगा, atomic energy हो जाएगी, lies with the government sector, right, and the rest of the economic sectors are left to the free market, right. And also here in mixed economy, the economic activity and price of goods and services are left to the interaction of the market forces, but whenever there is requirement, the government works as the regulator, right. So here we can say that private sector and public sector coexist, right. The fundamental and important sectors are controlled by government and rest of by private sector, right. The price of the goods and services and economic activities are left to the independent interaction of the market, but whenever there is requirement, government facilitates as a regulator, right. As a result, the economic decisions are taken both for the personal benefit, चूंकि यहाँ पर जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसके भी मेरिट्स होते हैं, और सोशल वेलफेयर गोल्स, तो दोनों को ध्यान में रखकर आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं. उदाहरण के तौर पर भारत की, बांग्लादेश एंड जो एशियन कंट्रीज हैं उनकी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो मिक्स्ड अर्थव्यवस्थाएं कहलाती हैं, मिक्स्ड इकोनॉमीज कहलाती हैं, राइट. जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, इट कैन बी कैटेगराइज्ड इन थ्री ग्रुप्स, राइट. मिक्स्ड मार्केट इकोनॉमी, राइट. सी, द mixed economy is the blend of capitalist economy and socialist economy. So first we will study mixed market system. In this system, the market system is dominant. Then planned, here you need to focus, planned mixed economy. Here the state
plays prominent role, right? And market plays a facilitator role. So in mixed market system, the market system is prominent. In plant, the government plays a prominent role and market system as a facilitator. Liberal system, in जो लिबरल सिस्टम होता है उसमें यहाँ पर नियोजन को प्राथमिकता तो दी ही जाती है, इसके साथ ही जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए मोर लिबरल पॉलिसी भी अपनाई जाती है, राइट? तो ये यहाँ पर मिक्स्ड अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार थे. नाउ वी विल स्टडी द मेन फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी. तो यहाँ पर क्या है? को एक्सिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, देन इकोनॉमिक प्लानिंग, रोल ऑफ गवर्नमेंट एज अ रेगुलेटर. ठीक है, जो जितनी भी सेक्टर्स होते हैं वो प्राइवेट क्षेत्र के लिए छोड़ दिए जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर के लिए, परंतु वेन एवर देयर इज रिक्वायरमेंट जो गवर्नमेंट होती है वो रेगुलेटर के रूप में कार्य करती है. पर्सनल फ्रीडम भी होती है यहाँ पर, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक प्लानिंग. तो यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही कोएग्जिस्ट करते हैं. नाउ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट? फर्स्ट, द बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज. ये आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझना है कि जो जितनी भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं दे रिक्वायर सोशल वेलफेयर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट? यदि वो कैपिटलिज्म को अपनाएंगे तो हो सकता है सोशल वेलफेयर ना हो पाए, और यदि वो कैपिटलिस्ट को अपनाते हैं तो हो सकता है उनको ग्रोथ मिल जाए लेकिन सोशल वेलफेयर ना हो. इन दिस सिचुएशन अगर उनको सोशल वेलफेयर भी चाहिए और ग्रोथ भी चाहिए तो उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है मिक्स्ड इकोनॉमी का, ताकि जो कैपिटलिस्ट की जो विशेषता है उसकी वजह से ग्रोथ जल्दी होगी और सरकार अपने नियंत्रण में जो वेलफेयर स्कीम है उसके माध्यम से सोशल वेलफेयर भी कर सकती है. सो हियर द बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ least developed countries is the most important merits of the mixed economy. Second, control of economics ups and downs. Here government plays a facilitator role as and when required. Therefore, whenever there is economic problem, the ups and downs are controlled by the government. Third, inclusion of merits of both capitalism and socialism. You know very well, reduction and class struggle, right? Because government through its social welfare scheme जो है, जो स्कीम के माध्यम से जो है आर्थिक असमानता है उसको कम करने की कोशिश करती है, राइट? डिमेरिट्स में क्या हो जाएगा यहाँ पर? मॉडरेट पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज हियर प्राइवेट सेक्टर एंड government sector, private sector and government sector both coexist in mixed economy. Therefore something कभी कभी जो प्राइवेट क्षेत्र होता है और गवर्नमेंट क्षेत्र होता है उनके बीच में क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट होता है, और बिकॉज ऑफ दैट कॉन्फ्लिक्ट जो मॉडरेट रेट होता है, जो अर्थव्यवस्था की जो विकास दर होती है वो कैसी होती है? मॉडरेट होती है. तो प्राइवेट एवं गवर्नमेंट सेक्टर के आपसी मतभेदों की वजह से जो है अर्थव्यवस्था को उतना अच्छा विकास नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए. सेकेंड, हियर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट. तो कभी कभी किसी नीतियों पर जो है वो प्राइवेट सेक्टर एवं गवर्नमेंट सेक्टर के बीच में मतभेद भी होता है, और इससे जो लाभ होते हैं वो क्या होते हैं? टेम्पोररी होते हैं. तो दीज वर द डिमेरिट्स ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी. नाउ we will study what were the reasons behind adopting mixed economies in India. See, in 1947 when India got independence we had social problem, right? Like health issues, education and growth. ठीक है, तो 1947 में हमको जो सामाजिक समस्याएं थी उनको भी हल करना था और आर्थिक विकास भी चाहिए था, राइट? इसी वजह से हमने ना तो समाजवाद को अपनाया और ना ही किसको अपनाया? पूंजीवाद को. देयरफॉर इंडिया एडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमीज. ठीक है, और मिक्स्ड इकोनॉमी को क्यों अपनाया?
क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी के कारण ही हम रैपिड डेवलपमेंट भी कर सकते हैं और जो सोशल वेलफेयर स्कीम है उनका भी फायदा ले सकते हैं। तो इस यही यहाँ पर मैंने पूरे पॉइंट्स में दिए। फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड the capital and resources with the state governments were minimal. Therefore, to take the advantage of capital, technology and management of the management capacity available with private sector, तो प्राइवेट सेक्टर के पास में जो कैपिटल टेक्नोलॉजी थी और जो मैनेजमेंट था उसका फायदा लेने के लिए भी मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई गई, राइट। फिर टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा और जो इंडियन इकोनॉमी थी उसको ग्लोबल कंपटीशन के स्तर का बनाने के लिए, और चूंकि यहाँ पर स्टेट अपने नियंत्रण में जो है पब्लिक वेलफेयर जो स्कीम है उनके माध्यम से सोसाइटी का भी वेलफेयर कर सके। तो निजी क्षेत्र की वजह से जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो दर थी वो तेज हो जाती और इकोनॉमिक्स जो प्राइवेट सेक्टर के पास में जो कैपिटल था, जो टेक्नोलॉजी थी, उससे एक तो हमारी जो अर्थव्यवस्था की उसकी विकास दर भी तेज होती, राइट। इसके साथ ही हम हमारी अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपटीशन का बना सकते थे और वहीं जो गवर्नमेंट थी वो अपनी नीतियों के माध्यम से जो सोशल वेलफेयर सोसाइटी जो समाज कल्याण है उस पर ध्यान दे पाती। तो इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इंडिया एडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, राइट। सो वी हैव स्टडीड the mixed economy. In the next lecture we will meet with the new lecture. Till then, thank you.